جناب پشاور والوں سے سوال ہوگا، 4 آپشن ہوں گے، ہر آپشن پر نمبر کم ہوتے جائیں گے. 4 میں سے پہلے ہی آپشن پہ جواب دے دیا تو 5 نمبر، ورنہ پھر 4 3 اور آخری آپشن کے بعد جواب دیا تو 2 نمبر ملیں گے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ سیگمنٹ ہے اللہ کے دوست. جناب آپشن نمبر 2. آپشن نمبر 2. 2 نمبر آپشن میں کیا موجود ہے جناب؟ سن ولادت کس سال؟ 1272 سن ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے. ناظرین یہ ہمارے دور کے قریب کی شخصیت ہیں. صحیح جواب 5 نمبر دلوا دے گا، غلطی نہ کیجئے گا. جی امام احمد رضا خان بریلوی القندہاری رحمہ اللہ. ارے جناب انہوں نے پہلے ہی آپشن پر جواب دیا ہے. یاد رہے ناظرین، اگر یہ جواب ٹھیک ہے تو پشاور والے 5 نمبر لے جائیں گے، ورنہ 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. ذرا آپشن مزید کھولتے ہیں. بتائیے 1 نمبر آپشن کے پیچھے کیا تھا؟ تاریخ سن اور تاریخ سن کیا تھی؟ 25 صفر 1340 سن ہجری. چلے وفات جو ہے، چلے جناب آپشن نمبر 3 ذرا کھولیے گا. مقام ولادت بریلی شریف. جی ہاں، یہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. پشاور والوں نے ایک ساتھ 5 نمبر لے کر لمبی چھلانگ لگائی ہے. اب باری کوئٹہ والوں کی ہے. 4 آپشن ہیں، بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ نمبر 3. نمبر 3 مقام وفات بغداد شریف عراق. جناب بغداد شریف کے تو بہت سارے اولیاء کرام ہیں. نمبر 2. نمبر 2 مقام ولادت جیلان شریف. اللہ اکبر، کیا یہ قریب پہنچ گئے ہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے ذرا ایک اور آپشن کھول کے دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح جواب دیا ہے. صحیح جواب انہیں 4 نمبر دلوا دے گا. 1 نمبر بتائیے کیا تھا؟ سن ولادت 470 سن ہجری. جی ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم. جواب درست دے دیا ہے. سرکار ڈالو نظر کرم، سرکار ڈالو نظر کرم، سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. چلیں جناب اب چلتے ہیں سکھر والوں کی طرف. 4 نمبر لے لیے کوئٹہ والوں نے. 1 نمبر کا فرق ہو گیا ہے پشاور اور کوئٹہ کے درمیان. سکھر والے نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر 4. نمبر 4 بتائیے 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مقام ولادت کربلا. مقام وفات تھا، معاف کیجیے گا. کربلا میں ان کا وصال ہوا ہے. کچھ قریب پہنچ سکتے ہیں مگر شہدائے کربلا بہت سارے ہیں. غور کیجئے. پانچ سیکنڈ ہیں، جلدی کیجئے. نمبر 2. نمبر 2 غلطی نہیں کرنا چاہتے، کنفرم کرنا چاہتے ہیں. سن ولادت 4 سن ہجری. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. یا حسین مشکل کشا یا حسین مشکل کشا آپ کے سب جان سارو
4 नंबर सक्खर वालों ने भी हासिल कर लिए। चलें, इस हसनैन करीमैन का करबला वालों का जिक्र हुआ है, देखते हैं ताजरान से एक और सवाल करते हैं, अगर जवाब दे पाते हैं कि नहीं, कि बताइए करबला के मैदान में बहुत सारी शहादतें हुई, सबसे छोटी उम्र में जिनकी शहादत हुई उनका नाम बताएंगे। सबसे छोटी उम्र में जिनकी शहादत हुई वो कौन शहीद थे और कितनी बड़ी ये कुर्बानी थी, आइए देखते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम चौधरी एजाज अहमद फ्रॉम फैसलाबाद जी जी इस सवाल का जवाब है हजरत इमाम अली असगर। हजरत इमाम अली असगर रदी अल्लाह तआला अन्हु 6 माह की उम्र में प्यासा उन्हें शहीद किया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाल्लाह। दिलचस्प मालूमात, ये ज़हनी आजमाइश के जो सवालात हैं उन पर मुश्तमिल किताब है, बड़ी दिलचस्प है। इसके अंदर तकरीबन 92 मौज़ूआत पर जो है वो इसके अंदर सवालात मौजूद हैं। 170 रुपए में मकतबुल मदीना से तलब की जा सकती है और साथ में तस्बीह मदीना। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, इसका भी शुक्रिया। एक और सवाल करते हैं करबला के काफिले ही के हवाले से। एक और शहीद हुए थे करबला में जिनको हम शक्ले मुस्तफा भी कहा जाता है, और सुभान अल्लाह वो हजरत अली असगर के भाई भी थे। चले, और इशारा भी दे दिया है, हमारे ताजरान में से कोई जवाब देना चाहें? जी, हजरत अली असगर के ब्रादर भी थे और उनको हम शक्ले मुस्तफा भी कहा जाता है, वो कौन सी हस्ती है? जी अजहर वकार फैसलाबाद से। जी, अली अकबर, हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह पाक उनके मजार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। बहुत शुक्रिया, आपकी भी तशरीफ आवरी का तोहफा आपको भी पेश करते हैं जनाब। तकलीफ ना दीजिए, इसके साथ जो है वो 96 दिलचस्प हिकायात इसके अंदर मौजूद हैं, ये इंशाल्लाह इन्हें दी जाएगी। 90 रुपए की मकतबुल मदीना से भी तलब की जा सकती है और साथ में तस्बीह मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चलते फिर पिशावर वालों की तरफ। अल्लाह के 2 सेगमेंट है, 4 ऑप्शन दिखाए जाएं। जी, नंबर 3। नंबर 3, 3 नंबर के पीछे बताइए जनाब क्या मौजूद है? पश्तो जबान में 3 को क्या कहते हैं? द्रे द्रे। अच्छा, चले जनाब, तारीख सन्ने वफात 18 मुहर्रमुल हराम, क्या बात है, और 94 सिने हिजरी। क्या फिर 5 नंबर लेंगे पिशावर वाले, या जनाब रिस्क नहीं लेंगे? हजरत सईदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। नहीं जनाब, आज पिशावर वाले बड़े मूड में लग रहे हैं, सारे नंबर लेना चाहते हैं। फिर देखते हैं क्या ये गलती तो नहीं कर गए। एक और ऑप्शन खोल के बताइए जनाब, 1 नंबर के पीछे क्या है? मकाम विलादत, मदीना मुनव्वरा में विलादत हुई। नंबर 2 क्या है? 2 को क्या कहते हैं पश्तो में? दुआ। दुआ खोलें जनाब। मकाम वफात, जन्नतुल बकी। जनाब ये कोई और नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शावर वाले आगे बढ़ते हुए 5 नंबर हासिल किए हैं। कोयटा वालों की बारी है, नंबर दिखाए जाएं। आप भी बलोची में बताओ ना, बलोची में 1 को क्या कहते हैं? असिट्टिमल। असिट्टिमल। बहुत मुश्किल है भाई, 1 नंबर खोल दो भाई। चले जनाब, सने विलादत 649। जनाब क्या ऑप्शन दूसरा लेंगे? 649 सिने हिजरी में बुजुर्गों की विलादत हुई है। ये कौन सी अजीम हस्ती है? जल्दी कीजिए, 6 सेकंड है। कोई और ऑप्शन लेना चाहे तो कोई और ऑप्शन ले लें, जल्दी कोई नंबर बोल दें। इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला। गंज जवाब। चले, क्या कहना चाह रहे हैं? फरीदुद्दीन गंजे शकर, मसूद फरीदुद्दीन गंजे शकर। चलें देख लेते हैं दोनों में से कौन सही है। जरा ऑप्शन खोलिए जनाब। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, मुल्तान। जनाब तीसरा ऑप्शन बताइए। ये ऑप्शन नंबर 3 मकाम वफात, ये मुल्तान ही में इनकी वफात हुई। मुल्तान में तो गंजे शकर भी नहीं है। अब जनाब ये कोई और नहीं, हजरत शाह रुकनुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, अगर मिस्टेक हो रही है, कंफर्मेशन नहीं है। कोई नंबर कोयटा वाले नहीं ले सके हैं। सक्खर वालों की बारी है जनाब, स्क्रीन पर नंबर दिखाए जाएं। चलें, नंबर 2। नंबर 2 सक्खर वाले सिंधी में 2 को 2 क्या कहते हैं? सही बा अचीवियो सही तमाजो। 1251 सिने हिजरी। 1251 को क्या कहेंगे? 1251 1251 1251 1251 सिने हिजरी। चलो जनाब,
वसी अमन मुहद्दिस सूरती। जनाब इन्होंने भी फौरन जवाब दे दिया है। क्या ये जवाब ठीक है? इनका सही जवाब इन्हें 5 नंबर दिलाएगा। लेकिन हम एक और ऑप्शन खोल कर देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन के पीछे क्या है? तारीख सन, वफात की जो तारीख है 8 जमादिल ऊला 1334 सने हिजरी। ऑप्शन नंबर 3 को जरा खोलते हैं जी। मकाम विलादत सूरत हिंद, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सक्कर वालों ने भी 5 नंबर हासिल किए। नाज़रीन, इस सेगमेंट के जरिए बड़े बड़े बुजुर्गों के बारे में आपको जानने को मिल रहा है। कब विलादत हुई, कब विसाल हुआ, पैदा कहां हुए, किस शहर में विसाल हुआ, मजार कहां मौजूद है। सुभान अल्लाह। फैजान औलिया जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें औलिया इकराम का फैजान नसीब फरमाए। आइए कॉल शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड को देखते हैं जी। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, जिंदगी में टेंशनें हैं, हालात बहुत खराब है, मामला जिंदगी के उलझे में। यकीन जाने आपका ये सिलसिला या मदीनी चैनल के कोई भी सिलसिले देखते हैं ना, जिंदगी की कई टेंशनें जिंदगी की भूल ही जाते हैं हम। आपका सिलसिला देखकर अल्लाह का शुक्र है, इस कदर खुशी नसीब होती है, खुशी महसूस होती है, हंसते रहते हैं और मुकाबले की जुस्तजू में लगे रहते हैं। और आपकी बातों में फिर मदीने की यादें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई जिंदगी की टेंशनें हम सारी जिंदगी से खत्म ही हो जाती है, हम भूल जाते हैं। अल्लाह आपको, मदीनी चैनल को, अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे और ये सिलसिले ऐसे ही हमारे हमेशा शादो आबाद चलते रहे। आमीन आमीन। बेसिकली देखिए, मदनी चैनल वाकई टेंशन फ्री चैनल है। कुछ चैनल खोलते हैं तो बताते इतनी घबराहट वाली खबरें मिलती हैं कि बंदा चैन में होता है तो बेचैन हो जाता है। टेंशन ही टेंशन, सनसनी। और जनाब जिसको कहते हैं उनको शायद इसी वजह से रेटिंग्स मिलती होंगी कि वो सनसनी फैलाते हैं। मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन दूर करता है, रिलैक्स पहुंचाता है। और सच्ची बात पता है क्या है? मदनी चैनल पर नबी पाक की बातें होती हैं। और मेरे आला हजरत कमाल की बात लिखते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। आपने ही कहा ना कि बहुत सारी टेंशनें हैं लेकिन सब भूल जाते हैं जब मदनी चैनल देखते हैं। उसकी वजह क्या है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। उनके निसार को कैसे गिरज में हो, जब याद आ गए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ सब गम भुला दिए हैं। वाकई जिंदगी में बहुत गम है, टेंशन्स हैं। कौन है दुनिया में जो सुखी है? कोई बीमार है, कोई कर्जदार है, किसी के घर में प्रॉब्लम्स हैं, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी के पैसे पूरे नहीं होते, कोई कर्जे में डूबा है, कोई दुश्मन के खौफ में है। ये जिंदगी है ना नाजरीन, ये मसाइल के पहियों पर ही चलती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हो जो उसको कोई सुखी सुख हो। प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम भरी जिंदगी को हम कैसे सुकून से गुजार सकते हैं? तो खुदा की कसम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात वो है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत हो जाए ना, जब उनकी याद दिल में घर कर जाती है तो दुनिया के गम याद ही नहीं रहते। जब मदीने की याद में आंसू बहते हैं तो बंदा अपने गम, अपने आंसू भूल जाता है। जो आंख अल्लाह और उसके रसूल की याद में नहीं रोती ना, फिर उम्मन देखा यह जाता है वो दुनिया के गमों में रोती है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें इश्क अता फरमाए, हमें खौफ खुदा में और इश्क रसूल में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। क्या खूबसूरत बात की है कि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। इंशाअल्लाह उनकी याद को मजीद बढ़ाने के लिए अब इंशाअल्लाह यहाँ हम मजीद नातख्वानी भी करेंगे, नेक अमाल का जायजा भी होगा। मगर अब वक्त हुआ है, मदनी चैनल पर रोजाना बलाओं और वबाओं से नजात के लिए अजान दी जाती है। आप भी तवज्जो के साथ अजान में शामिल हों, फिर इंशाअल्लाह